Hi guys, in this lecture I am going to solve a problem. This problem was asked in your previous exam. First I will read out the question of the problem. In an epicyclic gear train, the internal wheels A and B, compound wheels C and D rotate independently about axis O. So here they are given two internal wheels A and B, means internal gears. Okay, and compound wheels C and D. Compound wheels means both are mounted on the same shaft. Wheel C and wheel D are mounted on the same shaft, but all the gears A, B and compound gears C and D are rotating independently about the axis O. A, B, C, D, all these gears are rotating about the same axis, that is O. Next, the wheels E and F rotate on pins fixed to the arm G. So as I said in the previous problem, pins means shaft. Pins means shaft. Here the wheels E and F rotate on pins fixed to the arm G. So here gears E and F are rotating independently on the different shafts. Okay, and these two gears, that is E and F, are fixed to the आर्म जी, मीन्स अटैच टू दी आर्म जी. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, व्हील्स ई और एफ है ना, डिफरेंट शाफ्ट्स पे माउंटेड है और ये दोनों गेयर्स जो है ना आर्म को फिक्स्ड है. ओके, नेक्स्ट, ई गेयर मैशेस विथ ए एंड सी. यहाँ हियर ई गेयर इज माउंटेड ऑन दी आर्म जी इन सच ए वे दैट इट इज मैशिंग विथ ए एंड सी. गेयर ई is mounted on the arm G in such a way that it is meshing with A and C. Okay. Next, F gear meshes with D and B. F gear is mounted on the arm G in such a way that it is meshing with gears D and B. Next, all the wheels have same module and the number of teeth are TC is equal to 28, TD is equal to 26, TE is equal to TF is equal to 18. So here they have given the, here we have to consider the module of all the gears, all the wheels as same, and here they are given the number of teeth of gear C, that is 28, gear D as 26, gear E and F, that is 18. Here the number of teeth of gear E and F are same. So this is the question. Here they have asked 4 parameters. So first one is sketch the arrangement. Here in this question they have not given the diagram, so you have to draw the diagram based on this given question or based on this description. Next task is find the number of teeth on wheels A and B. So here here in the question they have not given the number of teeth of A and B. This you have to find out. Next, if the arm G makes 100 RPM clockwise and wheel A is fixed, find the speed of B. So in the next case you have to find the speed of wheel B when arm G makes 100 RPM clockwise and wheel A is fixed. Means NG is equal to minus 100 RPM and NA is equal to 0. Then you have to find out the speed of B. Okay, so this is for this case you have to find out the speed of wheel B. Similarly, there is one more case. If the arm G makes 100 RPM clockwise and wheel A makes 10 RPM counterclockwise, this is counterclockwise, that is anti-clockwise, find the speed of B. So in the next case also you have to find out the speed of B when arm G makes 100 RPM clockwise and wheel A makes 10 RPM counterclockwise, that is anti-clockwise. It means you have to take NG is equal to minus 100 RPM and NA is equal to plus 10 RPM. By taking these two values you have to find out the speed of wheel B. So we will solve the cases one by one. Here there are 4 cases, 1 2 3 4. So we will solve the cases one by one. So first we shall solve the first case, sketch the arrangement. So for this arrangement we shall sketch the arrangement. So here
how to sketch I will show you. So here very simple concept. Here first you again I will read out the question here. In an epicyclic gear train, the internal wheels A and B. So here they have given two internal wheels, that is A and B. Okay, so usually internal wheels are larger, means compared to the other gears they are larger in size. So first I will draw the gears A and B. Okay, next I will draw the compound wheels C and D, rotate independently on the axis O. So all these gears are rotating about the same axis, that is O. So first I will draw the internal wheels A and B. So here I will draw the diagram. First I will draw the two internal wheels. Here they have given the internal wheels A and B. So first so here I have drawn two internal wheels, okay, A and B. So here they have given two internal wheels A and B. I have drawn two internal gears here. Okay, so here you can take any one of you can take this as A और this as A. यहाँ पे आप कौन सा भी A करके ले सकते हैं, कौन सा भी B करके ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि बाहर वाला ही है अंदर वाला भी, ऐसा कुछ नहीं है. You can take this as A और this as A. ओके, यू कैन टेक आइदर दिस एज बी और दिस एज बी. यहाँ पे आप कौन से गियर को भी ए करके कंसिडर कर सकते हैं, कौन से गियर को भी बी करके कंसिडर कर सकते हैं. मगर मैं यहाँ पे इसको मैं ए करके लेता हूँ, नेक्स्ट इसको बी करके लेता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट ये हो गया, दो इंटरनल्स व्हील निकाल दिया. नेक्स्ट व्हील्स सी एंड डी रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट द एक्सिस ओ. सो यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों गियर है ना सेम एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं, दैट इज ओ. यहाँ पे मैं ओ करके लेता हूँ पहले. ये दोनों का एक्सिस हो गया ओ, और सी और डी का भी एक्सिस यही रहेगा. और यहाँ पे सी और डी कंपाउंड गियर्स है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड व्हील्स सी एंड डी रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट द एक्सिस ओ. मतलब ये चारों ए बी सी डी चारों गियर्स है ना सेम एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं, दैट इज ओ. यहाँ पे देख सकते हैं आप internal wheels A and B, compound wheels C and D rotate independently about the axis O. तो यहाँ पे मैं अभी compound wheels C and D निकालता हूँ. ओके, हमेशा compound wheels जो है ना एक्सटर्नल गियर्स ही होते हैं, हमेशा compound गियर्स एक्सटर्नल गियर्स ही होते हैं. तो यहाँ पे मैं व्हील C और D सेम एक्सिस पे निकालता हूँ. ओके, तो यहाँ पे आप मैं C और D compound wheel सेम एक्सिस पे निकालता हूँ, दो गियर निकालता हूँ. यहाँ पे आप दो कंपाउंड व्हील्स निकाले सी और डी. यहाँ पे आप कौन सा भी गियर सी करके ले सकते हैं, कौन सा भी गियर डी करके ले सकते हैं. इन दोनों में कौन सा भी गियर आप सी करके ले सकते हैं, कौन सा भी गियर आप डी करके ले सकते हैं, नो इश्यूज. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सी करके लेता हूँ, ये गियर को सी करके लेता हूँ, ये अंदर वाले गियर को डी करके लेता हूँ. आप इसको सी करके इसको डी करके इसको सी भी करके ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, नेक्स्ट क्या है देखेंगे. द व्हील्स ई एंड एफ रोटेट ऑन पिंस फिक्स टू द आर्म जी. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ई और एफ है ना दो डिफरेंट पिंस पे रोटेट हो रहे हैं. पिंस बोले तो शाफ्ट्स पे रोटेट हो रहे हैं, और वो दोनों और ये दोनों गियर जो है नी आर्म जी को फिक्स है. मतलब आपको पहले आर्म निकालना होगा, ठीक है. आर्म के दोनों साइड आपको दोनों साइड आपको ई और एफ गियर निकालेंगे. तो पहले मैं आर्म निकालता हूँ. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हील ई और एफ दोनों अलग अलग शाफ्ट पे रोटेट हो रहे हैं, और ये दोनों गियर्स जो है ना आर्म जी को फिक्स्ड है. मतलब मैं पहले आर्म जी निकालता हूँ. ओके, और आर्म भी हमेशा है ना सेंटर के एक्सिस पे रोटेट होगा. आर्म भी हमेशा सेंटर के एक्सिस पे ही रोटेट होगा. यहाँ पे मैं रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ. ओके, आपको नोट्स में अच्छे से डायग्राम निकाला हुआ. ओके, सो ये आर्म जी होगा, दिस इज आर्म जी. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ई और एफ जो है ना डिफरेंट शाफ्ट्स पे डिफरेंट पिंस पे रोटेट हो रहे हैं और आर्म को फिक्स हुए हैं. यहाँ पे देखो आर्म के दोनों साइड में
दो अलग अलग पिन्स लेता हूँ, यहाँ पे एक पिन, यहाँ पे एक पिन, मतलब और इस पिन पे एक गियर रोटेट हो रहा है, इस पिन पे एक गियर फिक्स है, यहाँ पे ये पिन पे एक गियर फिक्स है, ये पिन पे एक गियर फिक्स है, और वो दोनों गियर्स ये आर्म पे ही रोटेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप ये पिन पे आप गियर ई भी निकाल सकते हैं, एफ भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये एंड पे आप गियर एफ को भी निकाल सकते हैं या ई को भी निकाल सकते हैं, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप ये पिन पे आप गियर ई को भी निकाल सकते हैं या एफ को भी निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी क्या करता हूँ मैं, ये एंड पे मैं क्या करता हूँ, ये एंड पे ई करके निकालता हूँ, गियर ई को निकालता हूँ, ये एंड पे गियर ई को ये एंड पे निकालता हूँ। आपको कैसे निकालना है बोले तो गियर ई को यहाँ पे दिया हुआ है, गियर ई गियर मैशेस विथ ए एंड सी, ई गियर मैशेस विथ ए एंड सी। मैं यहाँ पे गियर ई निकाल रहा हूँ। कैसे निकालना है बोले तो गियर ई जो है ना, गियर ई ए के साथ और सी के साथ मैश होना चाहिए, ए के साथ और सी के साथ मैश होना चाहिए। यहाँ पे वैसे आपको गियर ई को निकालना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वन सेकेंड आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे मैं गियर ई निकालने वाला हूँ, और वो गियर ई कैसे निकालने वाला हूँ बोले तो गियर ई, ये गियर ई है नहीं, यहाँ पे देखो ई गियर मैशेस विथ ए एंड सी। यहाँ पे आपको गियर ई ऐसे निकालना कि वो गियर जो है नी ए के साथ और सी के साथ मैश होना चाहिए। ठीक है, ये वाला गियर जो है ए है, आउटर गियर जो है गियर ए है, ये वाला जो गियर है सी है। तो आपको ऐसे निकालना कि गियर दोनों के साथ मैश होना चाहिए। ये हो गया आपका गियर ई। और व्हील ई, व्हील ई कर भी ले, व्हील करके लिखता हूँ, क्वेश्चन में व्हील करके ही दें, व्हील ई, व्हील ई। ओके, सो ये व्हील ई हो गया। आप एक बार यहाँ पे व्हील, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हील जो है नी ए के साथ यहाँ पे मैश हो रहा है और सी के साथ यहाँ पे मैश हो रहा है, हो गया। आप यहाँ पे व्हील ई निकालने के बाद ये एंड पे एफ निकालना पड़ेगा। ये एंड पे एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एफ कहाँ, एफ देखो कैसे मैश हो रहा है, किसके साथ मैश हो रहा है, एफ गियर मैशेस विथ डी एंड बी, एफ गियर मैशेस विथ डी एंड बी। यहाँ पे देखो आपको यहाँ एफ निकालना है। कैसे निकालना है बोले तो वो गियर जो है नी डी और बी के साथ मैश हो रहा है। एफ आपको यहाँ पे ऐसे निकालना है कि वो गियर डी और बी के साथ मैश होना चाहिए। ये वाला जो है बी है, ये वाला जो है डी है। तो मतलब आपको यहाँ पे गियर ऐसे निकालना कि यहाँ पे मैश होना चाहिए और यहाँ पे मैश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं गियर एफ, ये गियर एफ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ। ये गियर जो है एफ हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ गियर जो है बी के साथ मैश हो रहा है, ये वाला अंदर वाला बी गियर है, ये वाला अंदर वाला डी गियर है। तो आप देख सकते हैं व्हील एफ इज मैशिंग विथ बी एज वेल एज डी, एफ मैशेस विथ डी एंड बी, वही यहाँ पे निकाला। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट, ये हो गया आपका गियर ट्रेन। ये वाला होगा स्केच। ओके, दिस इज व्हाट द फर्स्ट टास्क। ये वाला स्केच हो गया। यहाँ पे देखो यही वाला स्केच, यहाँ पे यही वाला जो स्केच है यहाँ पे नीटली निकाला हुआ है नोट्स में। ओके, ठीक है, ये वाला हो गया स्केच। ठीक है, अभी देखो ये स्केच होने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल द व्हील्स हैव सेम मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ एंड द नंबर ऑफ टीथ आर TC is equal to 28, TD is equal to 26, TE is equal to TF is equal to 18। अभी मैं क्या करता हूँ, गिवन यहाँ पे गिवन नहीं लिखता, डायरेक्ट अभी क्या करता हूँ, यहाँ तो फिर नंबर ऑफ टीथ तो दे चुके हैं। अभी क्या करता हूँ मैं, नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील्स ए और बी के फाइंड करता हूँ। सेकेंड टास्क क्या है, ये फर्स्ट टास्क तो हो गया, स्केच निकाल दिए हम। अभी मैं दिखाया आपको कैसे निकालना है स्केच, ये स्केच निकाल दिया। ये फर्स्ट टास्क, ये वाला फर्स्ट टास्क हो गया। ओके, नेक्स्ट टास्क जो है फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी। तो ए और बी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डायग्राम को यूज़ करते हैं और ये रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टीथ ऑन, अभी हम सेकेंड टास्क फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड टास्क जो है
नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी उस फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन ए फाइंड करेंगे फर्स्ट, नंबर ऑफ टीथ ऑन ए, नंबर ऑफ टीथ ऑन ए। नंबर ऑफ टीथ ऑन ए फाइंड करने के लिए ए डायग्राम को यूज़ करता हूँ और रेडियस फार्मूला का यूज़ करता हूँ, जैसे आप प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए डायग्राम कैसे यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ से मुझे नंबर ऑफ टीथ ए के फाइंड करना है, तो इसलिए मैं गेयर ए का रेडियस लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मुझे नंबर ऑफ टीथ ऑफ गेयर ए को फाइंड करना है, तो इसलिए मैं इस गेयर ए का रेडियस कंसिडर करता हूँ। ये वाला जो है गेयर ए का सर्कल है बाहर वाला। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ टीथ ए के फाइंड करना है, तो मुझे ए का रेडियस ही कंसिडर करना है। यहाँ से यहाँ तक जो है नी गेयर ए का रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है नी गेयर ए का रेडियस हो, यहाँ से यहाँ तक गेयर ए का रेडियस। ओके, अभी मैं स्प्लिट करता हूँ इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक मतलब कहाँ पे मैशिंग हो रहा है वहाँ तक लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक ले गए तो यहाँ पे देखो गैप है, यहाँ पे मैशिंग नहीं है, तो ये वाला गियर को नहीं लेना चाहिए, ये वाला रेडियस नहीं लेना चाहिए। आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जहाँ पे मैशिंग हो रहा है वहाँ तक डिस्टेंस लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैशिंग हो रहा है, तो पहला स्प्लिट जो है ना यहाँ से यहाँ तक लेंगे, पहला पार्ट जो है ना यहाँ से यहाँ तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैशिंग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पहला पार्ट लेंगे। जहाँ पे मैशिंग हो रहा है ना वहाँ तक रेडियस लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो है नी ये गियर सी का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो है नी ये गियर सी का रेडियस है। मतलब यहाँ पे मैं और एक बार लिखता हूँ, आर ए इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है गियर ए का रेडियस है, उसको मैं आर ए करके लिखा है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक जो है ये गियर ए का रेडियस है, तो ये वाला यहाँ पे लिखा मैं रेडियस आर ए। अभी मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ बोले तो गियर सी और गियर ई का रेडियस लेके स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि गियर सी और ई यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो इसलिए मैं गियर सी और गियर ई का ही मुझे रेडियस लेना है। क्यों आप अगर गियर डी का रेडियस लेंगे तो यहाँ पे देखो गियर डी का यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा रेडियस, आपका डिस्टेंस गैप हो जाएगा इधर। आपको वो डिस्टेंस कितना है आपको मेजर नहीं कर सकते आप, तो इसलिए जहाँ मैश होते रहता है, जहाँ पे दो गियर्स मैश होते रहते हैं, तो उसको ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैं आर ए को कैसे स्प्लिट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आर सी, यहाँ से यहाँ तक आर सी, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जो है गियर सी का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक गियर सी का रेडियस है। मैं गियर सी का रेडियस क्यों लिया बोले तो यहाँ पे गियर सी मैश हो रहा है ई के साथ, इसलिए मैं रेडियस गियर सी का लिया। यहाँ पे देखो आप गियर डी का लेते तो गियर डी का ये वाला गैप है, तो इसलिए मैं गियर डी का रेडियस नहीं लिया। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो है ये गियर ई का रेडियस है, ये जो है गियर ई है, यहाँ से यहाँ तक गियर ई का रेडियस है, तो प्लस गियर ई। आप यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक अगेन ये जो डिस्टेंस है गियर ई का ही रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है अगेन गियर ई का ही रेडियस है, तो प्लस आर ई अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे स्प्लिट किया हूँ रेडियस गियर ए रेडियस को। यहाँ से यहाँ तक गियर ए का रेडियस आर ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक आर ए होगा। इसको मैं कैसे स्प्लिट किया हूँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आर सी दैट इज आर सी हियर। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ आर ई, यहाँ आर ई। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक अगेन आर ई, वो आर ई इधर है। ओके, सो आर ए इज इक्वल टू आर सी प्लस, और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर ए इज इक्वल टू आर सी प्लस 2 आर ई। ओके, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आर ए इज इक्वल टू आर सी प्लस 2 आर ई। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑल द व्हील्स हैव सेम मॉड्यूल। जब सभी गियर्स के मॉड्यूल सेम रहते हैं तो हम डायरेक्टली रेडियस के बदले में नंबर ऑफ टीथ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये कैसे आएगा मैं पहले ही प्रॉब्लम्स में बता चुका हूँ। जब सभी गियर्स के मॉड्यूल सेम रहेंगे तो आप डायरेक्टली रेडियस टर्म को नंबर ऑफ टीथ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अभी रेडियस टर्म्स को मैं नंबर ऑफ टीथ से रिप्लेस करता हूँ। ओके, ये कैसे आया है मैं पहले प्रॉब्लम्स में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आर ए के बदले में टी ए, नेक्स्ट आर सी के प्लेस में टी सी, आर ई के प्लेस में टी ई। ओके, यहाँ पे आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो।
टी ए का वैल्यू आपको मालूम नहीं, एज इट इज़ छोड़ दो। टी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 28। ओके, टी ई का वैल्यू 18 दिया हुआ है यहाँ पे, 2 × 18 टी ई का वैल्यू। ओके, टी ए इज इक्वल टू 64। ये नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील ये मिल गया आपको। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील बी फाइंड करना है। ए क्या आप फाइंड कर दिए, बी का फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टीथ ऑन बी, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील बी, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील बी, इसका फाइंड करना है। तो मैं नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील बी फाइंड करने के लिए मैं गेयर बी का रेडियस लेता हूँ। नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील बी फाइंड करने के लिए गेयर बी का रेडियस लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है गेयर बी का रेडियस हो गया। तो आर बी इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ये गेयर बी का रेडियस हो गया। ओके, तो ये रेडियस को मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है गियर डी का रेडियस है। ये देखो गियर डी है, ये देखो गियर डी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गियर डी है, यहाँ से यहाँ तक गियर डी का रेडियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो है ये गियर एफ का रेडियस है, तो प्लस आर एफ। ओके, नेक्स्ट और अगेन ये एंड से ये एंड तक, अगेन दिस इज द रेडियस ऑफ गियर एफ। यहाँ से यहाँ तक अगेन ये रेडियस ऑफ गियर एफ है, तो प्लस आर एफ, आर डी प्लस आर एफ प्लस आर एफ। ओके, मैं ये एंड पे क्यों मेजर किया बोले तो ये एंड पे ही आपका गियर रेडियस ऑफ गियर बी मिलेगा। तो आप ऊपर लिए तो आपको गियर ए का मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको गियर बी का नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। गियर बी का नंबर ऑफ टीथ फाइंड करने के लिए तो आपको ये नीचे वाला पार्ट कंसिडर किए तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। आप ऊपर वाला इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिख सकते, आपको रेडियस ऑफ ए मिल जाएगा। ऊपर वाले सेक्शन को आप रेडियस कंसिडर किए तो आपको रेडियस ऑफ गियर ए मिलेगा, नीचे वाले पार्ट को कंसिडर किए तो रेडियस ऑफ गियर बी मिलेगा। तो इसलिए मैं नीचे वाले पार्ट को कंसिडर किया हूँ। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया, आर बी इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो मैं कैसे स्प्लिट किया हूँ, आर डी, यहाँ से यहाँ तक आर डी, देन यहाँ से यहाँ तक आर एफ, ये वाला आर एफ, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ अगेन आर एफ, ये वाला आर एफ, आर डी, देखो यहाँ पे देखो ये आर बी है, यहाँ से यहाँ तक आर बी। नेक्स्ट इसको कैसे स्प्लिट करा, यहाँ से यहाँ तक आर डी, ये वाला आर डी, यहाँ से यहाँ तक आर एफ, ये वाला आर एफ, यहाँ से यहाँ तक आर एफ, अगेन ये वाला आर एफ। मैं और भी इसको सिंप्लीफाइड में लिख सकता हूँ, आर बी इज इक्वल टू आर डी प्लस 2 आर एफ। ये वाला इक्वेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सेम प्रोसीजर अभी जहाँ जहाँ पे रेडियस टर्म में आपको नंबर ऑफ टीथ से रिप्लेस करो, टी बी टी डी टी एफ, बिकॉज मॉड्यूल ऑफ ऑल द गियर्स आर सेम। अब यहाँ नंबर ऑफ टीथ सभी के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, टी बी एज इट इज रहेगा, टी डी का 26 है, टी एफ का 18 है, तो कैलकुलेट करो, टी बी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर बी। ये सेकेंड वाला टास्क भी हो गया, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए एंड बी फाइंड किया। थर्ड टास्क देखो, अभी थर्ड टास्क क्या है, इफ द आर्म जी, अभी थर्ड टास्क फाइंड करेंगे। इफ द आर्म जी मेक्स 100 RPM क्लॉकवाइज एंड व्हील ए इज फिक्स्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो पहले मैं ये कंडीशन को लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इफ द आर्म जी मेक्स 100 RPM क्लॉकवाइज, आर्म जी मेक्स 100 RPM क्लॉकवाइज, इसका मतलब एन जी इज इक्वल टू माइनस 100 RPM बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले कंडीशन लिख रहा हूँ, कंडीशन नंबर, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशन 3, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 100 RPM, ये वाला जी मेक्स 100 RPM क्लॉकवाइज, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 100 RPM बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज। नेक्स्ट यही कंडीशन में एंड व्हील ए इज फिक्स्ड, व्हील ए इज फिक्स्ड मीन्स एन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन के लिए आपको स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, यहाँ पे एन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये थर्ड कंडीशन हुआ।
ओके, फोर्थ कंडीशन भी अभी लिख लेता हूँ, बाद में भी वैल्यूज फाइंड करता हूँ। फोर्थ कंडीशन गिवन जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे देखो कैसे लिखता हूँ। इफ द आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब हुआ एन जी इज इक्वल टू माइनस 100 आरपीएम बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज, एन जी इज इक्वल टू माइनस 100 आरपीएम। एंड व्हील ए मेक्स 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब हुआ एन ए इज इक्वल टू 10 आरपीएम प्लस 10 आरपीएम बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे व्हील ए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है और विथ ए स्पीड ऑफ 10 आरपीएम घूम रहा है, तो इसलिए एन ए इज इक्वल टू प्लस 10 आरपीएम, एन ए इज इक्वल टू प्लस 10 आरपीएम। ओके, तो ये कंडीशन के लिए आपको स्पीड भी फाइंड करना है, स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करना है, तो ये एन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये कंडीशन को गियर ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए, ये कंडीशन को स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करने के लिए हमको टैबुलर कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, so now we shall go for the tabular column.